ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام ہی کا خیر مقدم۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جھوٹی قسم کھانے والے کے خیال میں سامان کو رائج کر دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ خبروں کے آغاز سے قبل ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ریاست میں عوامی حکمرانی کا 1 سال مکمل ہونے پر کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کلا یاترا کا کیا انعقاد۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عوام تعاون کرے، بچوں کو چائلڈ لیبر کے طور پر تشدد اور زیادتی کا نشانہ نہ بنائے، ضلع جج سنیتا کنچالا۔ آوارہ کتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ، بانسواڑہ کے ایک طالب علم پر کتوں نے کیا حملہ، متاثرین کے اہل خانہ نے سب کلکٹر کو پیش کی تحریری یادداشت۔ اب بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ریاست میں عوامی حکمرانی کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کلا یاترا کا کیا انعقاد۔ پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ریاست تلنگانہ میں عوامی حکمرانی کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عوامی فتوحات کا جشن منانے کے لیے ضلع میں منعقد کی گئی پرجا پالنا کلا یاترا کی کامیابی کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کلچرل سارتھی فنکاروں کا گروپ 7 دسمبر تک ضلع بھر کے تمام قصبوں، منڈل مراکز اور اہم گرام پنچایتوں میں ثقافتی پرفارمنس دے گا۔ انفارمیشن اینڈ ڈسٹرکٹ سیوک ریلیشن آفیسر کی رہنمائی میں تلنگانہ کلچرل آرٹ یاترا پرفارمنس کے لیے گاڑی کو خصوصی طور پر فلیکسی بینرز کے ساتھ تیار کیا گیا۔ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ نظام آباد سٹی کارپوریشن، بودھن، آرمور، بھیم گل میونسپلٹی اور ریاستی حکومت کے متعلقہ گاؤں کے تمام منڈلوں کے دیہاتوں میں اس ماہ کی 19 تاریخ سے 7 دسمبر تک پرجا وجے سونگ کا انعقاد مہالکشمی، اندرا مہیلا شکتی، گرہ جیوتی، ریتو لون کو فروغ دیں گے۔ متعلقہ وارڈوں اور منڈلوں کے تحت 3 گاؤں میں پرفارمنس کا اہتمام کرے گا۔ اس موقع پر ڈی پی آر او ان پدم شری تلنگانہ کلچرل ساتھی فنکاروں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عوام تعاون کرے، ڈسٹرکٹ جج سنیتا کنچالا کا بیان، اور کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچوں کو چائلڈ لیبر کے طور پر تشدد اور زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ ڈسٹرکٹ لا سروس امپاورمنٹ آرگنائزیشن کے کانفرنس ہال میں چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ وومن اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بچوں کے حقوق ویک کے اختتامی پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ جج سنیتا کنچالا نے کہا کہ
बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। बचपन इनकी जिस्मानी और जहनी पुख्तगी का दौर है और बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पर तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना ना बनाया जाए। वो बच्चों के साथ ज़्यादती को रोकने के लिए हिफाजती ढाल के तौर पर काम करें। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी पद्मावती, डीसीपी बसवा रेड्डी, वेलफेयर कमेटी के मेंबरान राजेंद्र और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, आसिफाबाद जिले में सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड, अवाम चौकस रहे। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिस सीताराम नायक ने दिया मशवरा। तेलंगाना में सर्दी से आसिफाबाद जिला शदीद मुतासिर है, जहां सर्दी के साथ साथ कोहर की घनी चादर भी देखी जा रही। महकमा मौसमियात के ताज़ा तरीन आदात व शुमार के मुताबिक चारशंबे को जिले के सिरपुर यू में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो रियासत का दूसरा सबसे कम दर्जे हरारत है। जिले में ज्यादातर जंगलात और पहाड़ियां हैं, जिसकी वजह से दूसरे अजला के मुकाबले यहाँ सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। सुबह के वक्त कोहर के बाद सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सीताराम नायक ने अवाम को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें, सिर्फ दोपहर के वक्त काम करें, सुबह व शाम इमरजेंसी की सूरत में ही घरों से निकले। जिले के सिरपुर यू में दर्जे हरारत 9.7, केरामेरी में 12.3, घनेधारी में 12.6, आसिफाबाद में 12.7, चिंतला मानीपल्ली में 13.4, तिरियानी में 11.1, वांकड़ी में 12.4, दहगाम में 13.7 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। बांसवाड़ा कस्बे में आवारा कुत्तों ने तालिबे इल्म पर किया हमला, जिस पर मुतासरीन के अहले खाना ने बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरण माई को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर सब कलेक्टर ने म्यूनिसिपल ओहदेदारों को कार्रवाई करने का दिया हुक्म। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में आवारा कुत्तों के हमले में तीसरी जमात का तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गया। एक मुकामी सरकारी प्राइमरी स्कूल का तीसरी जमात का तालिबे इल्म दोपहर के खाने के लिए घर जा रहा था कि आवारा कुत्तों के एक ग्रुप ने तालिबे इल्म पर हमला कर दिया। तालिबे इल्म के चीख पर मुकामी अवाम ने कुत्तों को भगाकर लड़के को बचा लिया। बाद अज़ान जख्मी लड़के को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इन सिलसिलेवार वाक़यात से कस्बे की अवाम को खौफजदा है। मुकामी साबिका वार्ड मेंबर शेख अकबर की क़यादत में मुतासरीन के अहले खाना के हमरा सब कलेक्टर किरण माई को मेमोरेंडम पेश किया। सब कलेक्टर ने फौरी जवाब दिया और म्यूनिसिपल ओहदेदारों से बात की और उन्हें फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किरण माई ने आवाम से कहा कि वो बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें और बच्चों की मुनासिब देखभाल करें। ముగ్గురు పిల్లల్ని గాయపరిచినాయి. దిస్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. వీ టు టేక్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ రిమూవల్ ఫర్ స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రే డాగ్స్. ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. అట్లాగే పెద్దలందరికీ కూడా కొంచెం మేము యాక్షన్ తీసుకొని ఇవన్నీ కంట్రోల్లో వచ్చే వరకు పిల్లలని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ మన పిల్లలు మన బాధ్యత, మనం చాలా జాగ్రత్తగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుందామండి. అలాగే మేము మా సైడ్ నుంచి చేయాల్సిన యాక్షన్స్ అన్ని తక్షణమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है।
जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। वफ़क़े के बाद दोबारा इस्तकबाल है। रुद्रूर मंडल के सिद्धापुर गांव में साफ सफाई का काम अफरा तफरी का शिकार। गुज़िश्ता 2 माह से ग्राम पंचायत दफ्तर को ताला लगा हुआ है। पंचायत सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ से गफलत बरत रहे हैं। मुकामी अवाम ने किया इजहार। रुद्रूर मंडल के सिद्धापुर गांव में सफाई का निजाम अफरा तफरी का शिकार। गांव वालों ने अपने दुख का इजहार किया कि पंचायत सेक्रेटरी गुज़िश्ता 2 माह से ग्राम पंचायत दफ्तर नहीं आ रहे। इसी तरह गांव के गंदे नाले का कचरा जमा होने से अफरा तफरी का शिकार हो गया है। इन्होंने कहा कि एक ट्रैक्टर भी कचरे के लिए यहाँ नहीं आ रहा। वो ट्रैक्टर ग्राम पंचायत दफ्तर में ही बेकार पड़ा हुआ। देहातों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो नहीं जानते हैं कि हम अपने मसाइल किसको बताएं। स्पेशल ऑफिसर MPDO सुरेश बाबू से शिकायत की कि वो अपने गांव पर तवज्जो नहीं दे रहे, जिससे गांव में बदबू व ताफुन का शिकार है। आला हुक्म फौरी तौर पर जवाब दे और अपने गांव के मसाइल को हल करे। बाबापुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इस्माइल हादसाती तौर पर तालाब में गर्क। मरहूम की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का किया आगाज। बाबापुर से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद इस्माइल हादसाती तौर पर तालाब में गर्क। तफसीलात के मुताबिक हल्का असम्बली बागुंडा के भीमगढ़ मंडल बाबापुर विलेज से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद इस्माइल 33 साल कल शाम 5 बजे के करीब बाबापुर के बाबा कुंटे में मछलियां पकड़ते हुए हादसाती तौर पर तालाब में डूब गया। मरहूम मोहम्मद इस्माइल की बीवी रुखसाना बेगम की शिकायत पर भीमगढ़ पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। मरहूम मोहम्मद इस्माइल बीवी के अलावा एक 3 साल बच्चा है। मोहम्मद इस्माइल की मौत पर बाबापुर में गम का माहौल पाया गया। दिसंबर 2019 से RTC ट्रेड यूनियंस पर आयद पाबंदियों को हटाया जाए। CITU के कायदीन ने निजामाबाद RTC डिपो पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया। शहर के CITU के ज़ेरे एहतमाम निजामाबाद RTC डिपो पर धरना मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर CITU के जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि दिसंबर से RTC ट्रेड यूनियन पर आयद पाबंदियों को हटाया जाए। इन्होंने कहा कि 2019 के CITU के रियासती कमेटी मुतालबा करती है कि शनाख्ती कमेटी इंतखाबात फौरी कराए जाए। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों के लिए मजदूर यूनियन के नुमाइंदों की शिरकत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का तकर्रुर किया जाए। PFS, RBS, SBT ट्रस्ट और जमहूरी हुकूक को बहाल किया जाए। इन्होंने इनके मसाइल हल का मुतालबा करते हुए 19 नवंबर को रियासत के तमाम डिपोओं और हैदराबाद के बस भवन में धरनों का मुतालबा किया। CITU की जानिब से तमाम शोबों के कारकुनों को RTC कारकुनों की हिमायत में धरनों में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील। गुज़िश्ता BRS हुकूमत ने RTC मजदूरों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए पाबंदियां आयद की थी। इन्होंने बताया कि ये फैसला पिछली हुकूमत ने सिर्फ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक RTC चलाने के लिए लिया था। डिपो मैनेजर से लेकर आला अफसर तक जिन अफसरान ने इस मौके को कबूल किया है वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि काम के औकात का और काम का बोझ बेहद बढ़ गया है। ఏదైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గతంలో అధికారంలో వచ్చిందో అనేక ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఐక్యత లేకుండా విచ్ఛిన్నం చేసే ప్రయత్నాలు అనేక చేసింది। దాంతో పాటు కార్మికులకు పరిభారం పెంచింది, కనీసం హాఫ్ లేకుండా చేసింది। అర్ధరాత్రి వరకు మహిళలకు కూడా
ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులు డ్రైవింగ్ అదేవిధంగా ఏదైతే కండక్టరు నిధులను నిర్వహించడం జరిగింది. ఊరు బయట ఉన్నా కూడా మహిళల పైన పనిభారం పెంచింది. అదేవిధంగా ఇవాళ ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత నేను అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఆర్టీసీలో కార్మిక సంఘాలను అనుమతిస్తానో కార్యక్రమాలను నిర్వహించే విధంగా చూస్తాను. కార్మికులకు పనిభారం తగ్గిస్తాను. కార్మికుల ఐక్యత ఉండే విధంగా చూస్తాను. అదేవిధంగా కార్మిక సంఘాలు తక్షణమే ఏదైతే ఎన్నికలు జరుపుతామని హామీ ఇచ్చింది. హామీ ఇప్పటి వరకు 11 నెలలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చినా సమస్యలు పరిష్కారం చేయలేదు. అదేవిధంగా ఏదైతే ఎక్కడ ఉన్న కొంగడి అక్కడనే ఉంచి పనిభారం పెంచింది. కార్మికులపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తుంది. అనేక విధాలుగా मरकजी हुकूमत की जानिब से बीड़ी सनत पर आए जीएसटी को वापस लिया जाए, जो कि एक दस्तकारी है, और मरकजी हुकूमत गुटखा सिगरेट पर जीएसटी आयद करे। तेलंगाना स्टेट बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन जिला सदर वाई उमैया ने किया मुतालबा। तेलंगाना स्टेट बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन जिला सदर वाई उमैया ने कहा कि जीएसटी से मुताल्लिक़ा 55वीं मीटिंग इस माह की 21 तारीख को रियासत राजस्थान में मुनक़िद होगी। इन्होंने मुतालबा किया कि करोड़ों मजदूरों पर मुनस्सिर दस्तकारी सनत पर मरकजी हुकूमत की तरफ से आयद जीएसटी को वापस लिया जाए या उसे 5% से ज्यादा नाफिज ना किया जाए। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के नुमाइंदों के साथ साथ रियासतों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि कॉरपोरेटर कंपनियों के जरिए चलाए जाने वाले सिगरेट और गुटखों पर जीएसटी आयद किया जाए और बीड़ी की सनत से दस्तबरदारी की जाए, जो मजदूरों की मेहनत से चलती है। इस मीटिंग में AITUC के जिला सदर पी नरसागौड़ और दीगर भी मौजूद थे। తగ్గించాలనేటటువంటి ఆలోచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ హ్యాండ్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీ అయినటువంటి బీడీ పరిశ్రమ మీద కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించినటువంటి జీఎస్టీని తగ్గించాల్సిందిగా మేము ఏఐటీసీగా తెలంగాణ రాష్ట్ర బీడీ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్గా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ బీడీ పరిశ్రమ మీద కోట్లాది మంది ప్రజలు కార్మికులు ఈ దేశంలో ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దాని ద్వారా ప్రభుత్వానికి కూడా ఆదాయం వస్తూ ఉన్నది. మరి ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ గుట్కాలకు సిగరెట్ల మీద జీఎస్టీ విధించడం అంటే అది దాన్ని అందరూ కూడా సమర్థిస్తారు. కానీ ఇవాళ చేతి వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి దీని మీద దాదాపు కోట్లాది మంది కార్మికులు ఆధారపడినటువంటి ఒక బీడీ పరిశ్రమ మీద జీఎస్టీ విధించడం అంటే ఆ పరిశ్రమ మీద వివక్ష చూపటం, దాంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కార్మికుల్ని పరిశ్రమకు దూరం చేయడం అవుతుంది తప్ప మరొకటి కాదు. కాబట్టి కార్మికుల ఉపాధిని దెబ్బతీయకుండా जिले में फसलों की काश्त का तरीका बदल गया। एक तरफ चावल की कटाई में दाने की फरोख्त उरूज पर है, तो दूसरी तरफ फसल पहले वसूल करने वाले किसान काश्तकारी में मसरूफ है। निजामाबाद जिले में फसलों की काश्त में अजीब सूरत हाल देखी जा रही है। जबकि बारिश के मौसम में काश्त की जाने वाली धान की फसल हाथ में आती है तो किसान खरीदारी मराकज में गला बेचने के लिए बहुत ज्यादा धान लगाते हैं। दूसरी तरफ कई देहातों में कई किसान धान के खेतों में हल चला रहे हैं। चावल की कटाई अभी शुरू हुई, किसान अनाज बेचने के लिए हुकूमत की तरफ से कायम करदा खरीदारी मराकज के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बरक्स जिले के लिए देहातों में किसान या संगी के काश्त में मसरूफ है। किसान फसलों के लिए तैयार है। रुद्रपुर मंडल मरकज के साथ कोटगीर, वर्नी, मोसरा और चंदूर मंडलों में कुछ किसान ट्रैक्टरों से अपने खेतों में हल चला रहे हैं। ताहम निजामाबाद जिला धान के पौधे लगाने में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। ओहदेदारों का अंदाजा है कि निजामाबाद जिले के यासंगी में 8.1 लाख एकड़ पर फसलें हैं। रियासत में अब तक कहीं भी यासंगी की काश्त शुरू नहीं की गई, लेकिन सिर्फ निजामाबाद जिले में ही किसान खरीफ की इब्तदाई काश्त के लिए तैयार है। यहाँ के किसान किसी पर इन्हिसार किए बगैर खुद फसलें काश्त कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान नामियाती काश्तकारी की तरफ माइल हो रहे हैं। मुश्तरका जिले में तकरीबन 8 लाख एकड़ रकबे पर यासंगी के मौसम में चावल की फसल काश्त करने के हालात हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर।
रियासत में अवामी हुक्मरानी का 1 साल मुकम्मल होने पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कला यात्रा का किया इनेकाद। बच्चों के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए अवाम ताउन करे, बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पर तशद्दुद और ज्यादती का निशाना न बनाए। जिला जज सुनीता कुंचाला। आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा। बांसवाड़ा के एक तालिबे इल्म पर कुत्तों ने किया हमला। मुतासिम के अहले खाना ने सब कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।